internationally as well as globally, besides creating work opportunities. The Society, in its over 125 years of existence, has performed its duty of creating a rightful forum for all. Art lover Sir Kawasji Jahangir started Jahangir Art Gallery in 1952 in memory of his late son Jahangir. It was then that the Society in 1966, its Platinum Jubilee year, the Society hosted its annual exhibition at Jahangir Art Gallery, and the art-loving fraternity enjoyed the works of Raja Ravi Verma, Amrita Shergill, Trinda, Pestonji Bomanji, along with recent era artists M.F. Hussain, Souza, Mohan Samant, Gaitonde, and many other artists of global renown. The Society also publishes art journals to keep artists and art lovers informed of the developments in the field of art and to update information about the artists. Till date, all the journals published on various occasions were welcomed by all. The Bombay Art Society, with its existence of more than 100 years, had all intentions to expand its operations in line with its laid down objectives and policies. In 1988, to develop budding talent, the Society organized a unique and innovative concert of veteran Indian classical vocalist Bharat Ratna Bhimsen Joshi and renowned artist M.F. Hussain. The Bendre Hussain Scholarship was started from funds raised at this event. Sir Kawasji Jahangir and Barrister Oak led the Society over 3 decades. The Society had several plans and programs to conduct. However, lack of its own premises was a constraint. In 1990, the Society celebrated its centenary year under the auspicious presence of the then Prime Minister of India, Shri Rajiv Gandhi. The same year, the government of Maharashtra allotted a plot to the Society. Renowned leader Sharad Pawar lent active support. The groundbreaking ceremony took place and the building is now ready. It's a tribute to the commendable and relentless efforts done by all who supported the Society since its inception. It is only befitting that this Centre of Art is being inaugurated by the Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. और ऐसी गौरवशाली संस्था का नेतृत्व कर रहे हैं विश्वविख्यात चित्रकार श्री वासुदेव जी कामत। मैं उन्हें विनती करती हूं कि वो सबका स्वागत करें और अपनी भूमिका प्रस्तुत करें। मां शारदा को वंदन। मंच पर विराजमान सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, महामहिम राज्यपाल श्री विद्यासागर राव जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी, आदरणीय श्री शरद पवार जी, माननीय श्री प्रकाश मेहता, माननीय श्री विनोद तावड़े जी और इस सभा में उपस्थित सभी मान्यवर सम्माननीय कलाकार, कला प्रेमी जनों को मैं हार्दिक नमन करता हूँ। आज द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी केवल एक संस्था नहीं, यह 1 से 27 साल की दीर्घायु व्यक्ति की तरह मुझे महसूस हो रही है। दृश्य कला के क्षेत्र में स्थापित यह सबसे प्रथम और ज्येष्ठ संस्था होने के कारण इसे पितृतुल्य स्थान प्राप्त है। वर्षों के बाद इसका अपने घर में यह प्रवेश कर रही है। DAS आर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमल से संपन्न होते हुए सुवर्ण क्षण के हम सभी साक्षी हैं। अपने प्रधानमंत्री कला और कलाकारों के प्रति रुचि और प्रीति रखते हैं, इसका हम आज अनुभव ले रहे हैं। 1888 से लेकर आज तक बॉम्बे आर्ट सोसाइटी से जुड़े हुए ज्ञात और अज्ञात सभी कलाकार और कला प्रेमियों को आज कृतज्ञता के साथ मैं
और हम सब स्मरण कर रहे हैं। उन सभी का प्रातिनिधिक होकर मैं कुछ मन की बात आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। हमारे यहाँ प्राचीन काल से कला को राजाश्रय देने की परंपरा है। इसी कर्तव्य विचार से बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की गतिविधि को और अधिक विस्तार देने के लिए शासन बॉम्बे आर्ट सोसाइटी को नियमित अर्थ सहायता ग्रांट देने की व्यवस्था करे, यह हमारी प्रार्थना है। आज पूरे महाराष्ट्र में इतिहास के साक्षी कलाकृतियों का भंडार इतस्ततः बिखरा हुआ है। उनको संग्रहित करके एक स्थायी संग्रहालय बने। आज महाराष्ट्र एकमात्र राज्य है जहां केंद्रीय ललित कला अकादमी की अब तक शाखा नहीं है कि जिससे यहाँ के कलाकारों को अकादमी से लाभ मिले। इस बॉम्बे आर्ट सोसाइटी आर्ट कॉम्प्लेक्स से सटा हुआ एक छोटा सा भूखंड जो उजाड़ पड़ा है, उस पर कला कुशलता, स्किल डेवलपमेंट और शिल्पकला प्रदर्शनी की गतिविधि चले तो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी हमेशा सहकार देगी। यह कला का स्थायी वातावरण बनेगा। अंत में यह महत्वपूर्ण बात, गत 124 साल में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की प्रति वार्षिक प्रदर्शनी में जिन कलाकृतियों को स्वर्ण पदक या सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुए, उनकी प्रदर्शनी दिसंबर-जनवरी 2017 में मुंबई के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में हम लगाना चाहते हैं। इसमें भारत सरकार का संस्कृति विभाग से सक्रिय सहयोग की हम अपेक्षा करते हैं। यह प्रदर्शनी भारत के चारों महानगरी में क्रमशः दिखाई जाए, इसका विनंती निवेदन लिखित रूप में मैं आपको सुपुर्द करना चाहता हूँ। हम कलाकार आस्वाद और आनंद के प्रेमी हैं। प्रधानमंत्री महोदय, आज आपकी मेक इन इंडिया की गतिविधि में हम कलाकारों की इंडियन क्रिएटिविटी, रचना कुशलता हमेशा साथ देगी, इसका हम विश्वास दिलाते हैं। आप सभी को पुनश्च अभिवादन, धन्यवाद। माँ भारती को नमन। धन्यवाद। आज यहाँ उपस्थित है आदरणीय सांसद और एनसीपी के अध्यक्ष माननीय शरद पवार जी। मैं उनसे विनती करना चाहूंगी कि वो इस सभा को संबोधित करें। देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले, आवाज ऐकू येतोय का? राज्याचे राज्यपाल, राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्याचे शिक्षण मंत्री, गृहनिर्माण मंत्री आणि कलेच्या क्षेत्रामध्ये आस्था असलेले आपण कलाप्रेमी आणि कलाकार आपल्या सगळ्यांच्यामध्ये सगळ्यांच्या वतीनं देशाच्या प्रधानमंत्र्यांचं स्वागत करण्याचा आनंद मला मनापासून होतोय। मुंबई शहर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का एक खजाना है। यहाँ स्थानिक कलाकार है, देश के अलग अलग हिस्से से लोग यहाँ आते हैं अपनी कला का दर्शन देने के लिए, कुछ न कुछ यहाँ योगदान देते हैं। और ऐसे कलावंतों के लिए यहाँ ज़्यादा सुविधा की आवश्यकता है। आज फोर्ट एरिया में कुछ न कुछ सुविधा का प्रबंध हुआ है। अच्छा कला दालन वहाँ ही हो गया। हम लोगों ने मिलकर नेहरू सेंटर में इस क्षेत्र में कुछ न कुछ हम
सहयोग कर सकते हैं, इस तरह का कुछ कदम उठाए हैं। फिर भी कलावंतों की एक ख्वाहिश थी कि कभी न कभी हम लोग जहाँ काम करते हैं, जो क्षेत्र हमारा क्षेत्र है, ये क्षेत्र में योगदान करने वाली संस्था जो 127 साल से इस शहर में काम कर रही है, इनका कहीं न कहीं घर, इनका मकान, उनका स्थान होने की आवश्यकता है। और ये बात मुझे याद है कि प्रफुल्लता धानुकर, शर्वी जोशी, ये कला के क्षेत्र में जिनका बहुत बड़ा योगदान है, उन्होंने मेरे कान पर डाली थी। एक जमाना ऐसा था जब इस राज्य की निर्मिति हो गई तो कला और साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की एक निवास की व्यवस्था तय करने का काम महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चौहान, उनके बाद वसंतराव नाईक, उन्होंने कलानगर नाम का एक क्षेत्र विकसित करके और कला का साहित्यिक उनको जमीन देकर बम्बई शहर का एक बड़ा हिस्सा इस क्षेत्र में मजबूत करने के लिए उन्होंने ध्यान दिया था। मगर ये बात काम में आई कि रहने का बंदोबस्त हो गया, मगर जहाँ कला विकसित हो सकती है ऐसा एक क्षेत्र, ऐसा एक दालन इस शहर में इसकी आवश्यकता है। और इसलिए आज हम जहाँ इकट्ठे हुए, यहाँ इस तरह के अलग अलग संस्था का एक दालन तैयार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने उस समय डिसीजन ले लिया, चाहे रंगशाला हो, चाहे बॉम्बे आर्ट सोसाइटी हो, भारत सरकार की जो अपंग लड़के लड़कियां हैं उनके जीवन में एक विश्वास देने के लिए काम करने वाली संस्था हो, तो ऐसी कई संस्था को यहाँ जगह देकर खड़ा करने का काम महाराष्ट्र सरकार ने किया है। और इससे ही आज हम यहाँ इकट्ठा हुए एक अच्छी संस्था कि जो 127 सालों से काम करते हैं, उनका खुद का मकान, निवास स्थान आज यहाँ बन गया है। यहाँ जो प्रदर्शनी की आप में से कई साथियों ने देखी होगी कि रविंद्रनाथ टैगोर से वासुदेवराव कामत तक जिन लोगों ने इस क्षेत्र में योगदान दिए, उनकी पेंटिंग्स, उनकी कलाकृति आज यहाँ दिखाई है। इसका एक परमानेंट एग्जीबिशन करने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र एक भाग्यशाली स्टेट है, यहाँ कई ऐसे कलाकार पैदा हुए कि जिन्होंने कला के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया और बड़ा नाम किया। इन सभी कलाकारों की जो कलाकृति है आज यहाँ आप देख सकते हैं। कई लोगों का नाम मैं ले सकता हूँ, मगर ये नामावली बहुत बड़ी है, इसलिए ये नामावली में मैं ध्यान नहीं देना चाहता हूँ। मगर मैं आप लोगों को इतना ही कहूँगा कि ये समारोह ख़त्म होने के बाद आपको समय हो तो वो प्रदर्शनी जाकर आप देखिए और इस कला किसी भी एक्चुअली आएगा तो डिलेड आएगा, इट्स बेटर आएगा तो डिले आएगा तो मत लेना। जो आवाज हमारी आपस की आवाज, नो दैट्स व्हाई आई वांट वन टू बी फ्री एक्चुअली। बिडलांना म्हणा की या कमेंटेटरचा ऑडिओ इपीचा ठेवून द्या तो दुसरा काढे। हा त्यात मी मध्ये मध्ये लावेन, हवं तर फील घ्यायला नाही तुम्हाला कळेल इन केस। हां आय थिंक आई डू दैट। इपीचा ठेवू द्या, इपीचा राहू दे, मी तो कंटिन्यूअस ठेवते। मला नकोच आहे फीलचा मी अधून मधून हे करत जाईन, कारण तिथली काय इंस्ट्रक्शंस नाही घ्यायचे आहेत ना आपल्याला। हां मैडम आप इसको इस कान में रख लीजिए तो ज्यादा। हां मैं वैसे कर। आपको इसका विश्वास मिलेगा कि जो क्षेत्र में आप काम करते हैं, इसी क्षेत्र में
समाज के सभी वर्गों का सहयोग आपको मिलता है और इसीलिए आप अपना काम हमेशा रखिए, नई पीढ़ी तैयार करिए और कला के क्षेत्र में भारतवर्ष का नाम दुनिया में रोशन करने के लिए आप प्रयास करिए। इतना ही कह के मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद। इसके पश्चात महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी से विनती करूंगी कि वो हमें मार्गदर्शन करें। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल जी, वरिष्ठ नेता शरद पवार जी, मेरे सहयोगी गृह निर्माण मंत्री प्रकाश मेहता जी, सांस्कृतिक कार्य मंत्री विनोद तावड़े जी, माननीय वासुदेव कामत जी, सभागार में उपस्थित सभी कला क्षेत्र के दिग्गज बहनों और भाइयों, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से उनके नए आशियाने का उद्घाटन यहाँ हुआ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मुंबई, जिसे लोग केवल आर्थिक राजधानी के रूप में देखते हैं, भारत की केवल आर्थिक राजधानी नहीं है, ये भारत की कला, साहित्य, थिएटर, सिनेमा, ऐसे सारे क्षेत्रों की राजधानी है। और इसलिए देश की इस राजधानी में, इस क्षेत्र की राजधानी में एक नया रत्न आज यहाँ सम्मिलित हुआ है। ये हम सभी के लिए बहुत ही हर्ष की बात है। 1857 में जे स्कूल की स्थापना के साथ मुंबई ने इस क्षेत्र में एक बड़ा दमदार कदम रखा और उसके बाद लगातार साहित्य के, कला के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो लोग थे, उनको मुंबई ने हमेशा आदर का स्थान दिया। और मैं माननीय पवार जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और अभिनंदन भी करता हूँ कि उस समय बड़ी दूरदृष्टि दिखाते हुए उन्होंने ये जगह सोसाइटी को दी और उसी कारण से आज इतना अच्छा संकुल हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। कामत जी ने राज्य सरकार से अपेक्षा व्यक्त की है कि ललित कला अकादमी की शाखा राज्य में शुरू हो, तो मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से राज्य सरकार उसके लिए जगह देगी और हम उसको यहाँ शुरू करने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास करेंगे। महाराष्ट्र ने हमेशा कला और साहित्य के क्षेत्र में अग्रणी स्थान रखा है। मुझे ये भी ध्यान में लाया गया कि जो हमारे कलाकार महाराष्ट्र सरकार की ओर से हम लोग जो प्रदर्शनी आयोजित करते हैं और उनमें जिनको पुरस्कार दिया जाता है, तो वैसे तो पुरस्कार की रकम मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी आज भी जो हमारे बाल कलाकार होते हैं उन्हें केवल 500 रुपये का पुरस्कार मिलता है और अन्य कलाकारों को 25,000 तक का पुरस्कार मिलता है। मैंने अभी हमारे सांस्कृतिक कार्य मंत्री से चर्चा की और हमने ये तय किया कि जो बाल कलाकार है उन्हें हम 10,000 रुपये का पुरस्कार देंगे और जो अन्य कलाकार है उनको हम 50,000 से लेकर तो 1 लाख तक का पुरस्कार देंगे। आज इस मौके पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ
इस क्षेत्र में जो कार्य आप कर रहे हैं, सरकार का काम उसके पीछे मजबूती के साथ खड़ा होना है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि हम विकास की प्रक्रिया की जब बात करते हैं तो उस समय भौतिक विकास के साथ साथ साहित्य का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, इन सारे क्षेत्रों का विकास ये एक निर्देशांक होता है समाज की उन्नति का, और इसलिए उस निर्देशांक के ऊपर भी राज्य सरकार का पुरजोर ध्यान रहेगा। यही आज के मौके पर मैं आश्वस्त करता हूं। फिर एक बार द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद। धन्यवाद। आपकी प्रोत्साहना के लिए आभारी हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी को महोदय से विनती करना चाहूँगी कि वो आज के अवसर पर 2 पुस्तिकाओं का विमोचन करें। एक है द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी अ हिस्ट्री एंड वॉयेज और दूसरी है मास्टर्स ऑफ इंडियन आर्ट। मैं प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करती हूँ कि अपने शुभ हाथों इन 2 ग्रंथों का आप प्रकाशन करें। द बॉम्बे आर्ट सोसाइटी अ हिस्ट्री एंड वॉयेज एंड दूसरी मास्टर्स ऑफ इंडियन आर्ट, इन 2 ग्रंथों का प्रकाशन यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी के शुभ हाथों। तत्पश्चात वासुदेव कामत जी से निवेदन करूंगी कि वो भारत माता की प्रतिमा जो उन्होंने खुद चितारी है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को समर्पित करें। भारतीय शैली द्वारा साकार हुई ये भारत माता की छवि हम सबको प्रेरणा देती रहेंगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय से विनती करती हूं कि वो इसे स्वीकार करें। इसके चित्रकार है स्वयं वासुदेव जी कामत। बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की इस इमारत को साकार करने वाले इस प्रोजेक्ट के विकासक श्री अशोक जगदाय जी से विनती है कि वो सम्मान स्वीकार करने मंच पर आए। मैं आदरणीय पंतप्रधान महोदय जी से विनती करूंगी कि वो उन्हें सम्मानित करें। इस उपक्रम को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जैसे कि 2015 का इंटरनेशनल अवार्ड लॉस एंजलिस। अशोक जी जगदाय जी का बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। जिनकी उपस्थिति से आज कला जगत जगमगा उठा है, ऐसे भारत के कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से विनती करूंगी कि वो आज इस अवसर पर हमें मार्गदर्शन करें। महाराष्ट्र के राज्य विद्यासागर राव, यहाँ के युवा मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र जी, बहुत कम ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं कि जो 3 शताब्दियों को प्रभावित करती हो।
आपकी बॉम्बे आर्ट सोसाइटी ने 3 शताब्दियों को प्रपादित किया है। 19वीं सदी में आरंभ हुआ और 21वीं सदी तक, और उसका मूल कारण कला की अपनी एक ताकत होती है, कला का अपना एक संदेश होता है। कला के भीतर इतिहास यात्रा करता है। कला संवेदनाओं की अभिव्यक्ति होती है, और तब जाकर के 3 शताब्दियों तक ये अपनी जगह बनाती है। शायद हिंदुस्तान में और खास करके महाराष्ट्र और मुंबई में कोई रहीश घराना ऐसा नहीं होगा जिसकी दीवारों पर कला लटकती न हो। कोई रहीश घराना नहीं होगा, लेकिन ये दुर्दैव देखिए कि जहां कला का गर्भास्थान होता है, उसे जगह पाने में 125 साल बीत गए। और इसलिए समाज के नाते ये सोचने की आवश्यकता है कि कलाकृति ये हमारे दीवारों की शोभा है, कि हमारे समाज की शक्ति है। अगर हम कलाकृति को हमारी दीवारों को सुशोभित करने का एक माध्यम ही सिर्फ मानते हैं, तो शायद हम कला से सदियों दूर हैं, मीलों दूर है। और ये स्थिति बदलने के लिए एक अविरत शिक्षा, अविरत संस्कार आवश्यक होता है। यही देश ऐसा है जिसके टेम्पल आर्किटेक्चर, इसकी विशेषता बारीकी से देखें कि जहां ईश्वर का जहां स्थान है, अनिवार्य रूप से वहां कला का स्थान है। हर मंदिर में आपको नृत्य मंडप दिखाई देगा। हर मंदिर में आपको कलाकृतियों के द्वारा इतिहास और परंपराओं को जीवित करता हुआ दिखाई देगा। ये इनबिल्ट व्यवस्था इस बात को द्योतक है कि हमारी सांस्कृतिक यात्रा में कला यात्रा की कितनी अहमियत है। अन्यथा ईश्वर के साथ साथ कला की यात्रा न होती। शायद दुनिया में कोई एक ऐसा चेहरा नहीं होगा कि जिसके इतने रूपों में कलाकारों ने उसकी साधना की हो। शायद गणेश जी एक ऐसे हैं कि जिसको हर कलाकार ने हाथ लगाया होगा, अपने तरीके से लगाया होगा, और शायद गणेश ही हैं कि जो अरबों अरबों रूपों में हमारे सामने प्रस्तुत है, अरबों अरबों रूपों में है। यानी किस प्रकार से कलाकार शुभ चीजों को पाता है, पनपाता है, और उस पौधे को वटवृक्ष की तरह विकसित करता है। और उस अर्थ में यहां वासुदेव जी ने एक बात कही, लेकिन मैं उससे थोड़ा अलग मत रखता हूं। उन्होंने कहा कला राज्याश्रित हो। जी नहीं, कला कभी राज्याश्रित नहीं होनी चाहिए। कला राज्य पुरस्कृत होनी चाहिए। कला को न कोई दायरा होना चाहिए, कला को न कोई बंधन होने चाहिए। और राज्य की जिम्मेवारी है
कि कला को पुरस्कृत करे। और मैं शरद जी को अभिनंदन करता हूं कि जमीन देने का फैसला किया उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री थे। कला राज्य पुरस्कृत होनी चाहिए और कला समाज की शक्ति का हिस्सा होनी चाहिए, तभी जाकर के कला परिणामकारी होती है। आध्यात्मिक यात्रा से जो लोग जुड़े हुए गए वे इस बात को सरल भाषा में शायद समझते होंगे कि शरीर की गतिविधि से पूर्व आध्यात्म मन और दिल में जगह प्राप्त करता है और उसके बाद वो शरीर के अभिव्यक्ति के रूप में, शरीर को एक साधन के रूप में उपयोग करता है। शरीर अध्यात्म के अनुभूति का माध्यम हो सकता है। वैसे कला उस पत्थर में नहीं होती है, उस मिट्टी में नहीं होती है, उस कलम में नहीं होती है, उस कैनवास में नहीं होती है। कला उस कलाकार के दिल और दिमाग में पहले अध्यात्म की तरह जन्म लेती है। जब एक कलाकार पत्थर तराशता है तो हमें लगता है वो पत्थर तराशता है, हम पूछते हैं कि तुम पत्थर तराशते हो कि नहीं, कहता है मैं तो मूर्ति तराश रहा हूं। देखने में इतना बड़ा फर्क होता है। हमारे लिए वो पत्थर होता है, कलाकार कहता है मैं मूर्ति तराशता हूं, हम कहते हैं तुम पत्थर तराशते हो क्या। ये हमारी सामाजिक जो सोच है उसको हमें बदलाव लाना पड़ेगा और तब जाकर के कला जीवन का महात्म्य बढ़ेगा। हमारे यहां बच्चों को रटे रटाए कविताएं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आप किसी भी घर में जाओ तो छोटा बच्चा होकर ले आएगी मम्मी अच्छा बेटे गीत गाओ, और वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार करता रहेगा। बहुत कम घर हैं जहां मां कहे कि बेटे तुमने कल पेंटिंग बताया था, देखो अंकल आए दिखाओ जरा। ये बहुत कम है। ये बदलाव जरूरी है। उस बालक के अंतर्मन की विकास यात्रा का आधार रटे रटाए शब्दों में नहीं है, उसके भीतर से निकली हुई चीजों से, उसने जो ऊपर नीचे कागज पे पेंटिंग किया है उसमें है। और इसलिए व्यक्ति विकास के अधिष्ठान के रूप में कला एक बहुत बड़ा अहम, यानी संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने में कला बहुत अनिवार्य होती है। आज टेक्नोलॉजी का युग है, सारी शिक्षा इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी पर प्रभावित हो रही है। जीवन भी अधिकतम टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, लेकिन हमें यह सजग रूप से प्रयास करना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ियों को इंसान कैसे बना रखे। डर लगता है कभी रोबोट तो नहीं हो जाएगा, इस स्विच को दबाए तो एक काम होगा, इस स्विच को ये दबाएगा तो एक काम हो जाएगा। और इसलिए उसके भीतर के इंसान को जीवित रखना है तो कला ही एक माध्यम है जो उसके जीवन को जीवित रख सकती है, उसके भीतर के इंसान को जीवित रख सकती है। और उस अर्थ में, और जब हम आर्ट कहते हैं ना, ART, ए मीन्स है एजलेस, आर है रेस, रीजन, रिलीजन लेस, टी है टाइमलेस। ये आर्ट अनंत की अभिव्यक्ति होती है और उस अर्थ में हम इसकी जितनी इसके महात्म्य को स्वीकारें, उसको सजाएं। मैं स्कूलों से आग्रह करूंगा कि वो अपने टूर प्रोग्राम बनाते हैं तो उस टूर प्रोग्राम में साल में एक कार्यक्रम तो कम से कम आर्ट गैलरी देखने के लिए बनाए। बाकी सब देखने जाओ, बीच देखने जाएंगे, आर्ट गैलरी देखने नहीं जाएंगे। उसी प्रकार से मैंने रेलवे डिपार्टमेंट को कहा है, जो बिजी रेलवे प्लेटफॉर्म है
और दो तरफ ट्रेन आती है, बीच में उसका खंबे होते हैं। मैंने कहा एक डिवाइडर के रूप में एक बढ़िया आर्ट गैलरी रेलवे प्लेटफॉर्म पर क्यों ना हो, और उस नगर के कलाकारों को, उभरते हुए कलाकारों को वहां जगह मिले। ऐसा कैसे हो सकता है? ताकि वहां आने वाला व्यक्ति उसको देखेगा, उस शहर का कलाकार होगा तो उसको अनुभव करेगा, और उसको अवसर मिलेगा कि भाई चलो 15 दिन के बाद मेरी एक नई पेंटिंग वहां लगने का अवसर मिलने वाला है, तो मैं और अच्छा काम करूं। अगले महीने मुझे मौका मिल सकता है, मैं और अच्छा काम करूं। हम अपनी व्यवस्थाओं को सहज कैसे बनाएं? अभी मैंने पिछली बार मन की बात में कहा था कि हमारे देश के रेलवे स्टेशनों पर कलाकार खुद समय देकर के आज रेलवे स्टेशनों को रंग रूप बदल रहे हैं। ये सरकारी योजना नहीं थी, नई सरकार का कोई बजट है, ये अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं और इसका इतना प्रभाव पैदा हो रहा है। एक प्रकार से वो संस्कार कर रहे हैं। स्वच्छता पर एक भाषण देने से ज्यादा एक कलाकार का पेंटिंग उसको स्वच्छ रखने के लिए प्रेरित कर रहा है। एक मेरे मन में, मैं नहीं जानता हूं हमारे कलाकार मित्र यहां कहीं बैठे होंगे किस प्रकार से इसको लेंगे। आने वाले युग को ध्यान में रखते हुए हम हमारी जो कलाकृति है उसको डिजिटल दुनिया का एक हाइब्रिड डेवलपमेंट कर सकते हैं क्या? जैसे कलाकार ने एक कृति तैयार की, उसको पहले विचार कैसे आया, वो कैसे कागज पे पनपता गया, 3 महीने 6 महीने वो उसमें डूब गया, उस प्रोसेस का एक 3 या 4 मिनट का डिजिटल वर्जन कोई भी व्यक्ति जब उसकी कलाकृति देखता है तो साथ साथ इस प्रोसेस का डिजिटल वर्जन देखें और विथ म्यूजिकल इफेक्ट देखें। आज मुश्किल क्या है कि बहुत कम लोगों होते, या तो भी कोई कला का ज्ञानी साथ चाहिए, वो उसको समझाए कि देखो इसका मतलब ये होता है, लाल इसलिए लगाया है, पीला इसलिए लगाया, तो उसको लगता है यार इतना बर्डन क्या करूं, अच्छा लगा चलो भाई। ये बदलाव के लिए डिजिटल वर्ल्ड को इसके कॉम्बिनेशन के रूप में कैसे लाया जाए, मैं चाहूंगा कि जो सॉफ्टवेयर आईटी की दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं उसमें रुचि लें और कलाकारों को एक नई ताकत, युग के अनुरूप नई ताकत ये कैसे दें, उस दिशा में प्रयास हो। फिर एक बार मैं महाराष्ट्र सरकार को, श्रीमान शरद राव जी को हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, वासुदेव और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं। और ये अब कलाकृतियों को तो जगह बहुत मिली, कला का जहां गर्भास्थान होता है उसको जगह मिल गई है और नई चेतना जगेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपके इस आशीर्वाद के लिए, मार्गदर्शन के लिए हम सदा आपके ऋणी रहेंगे और आपकी प्रोत्साहना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जोरदार तालियों के साथ हमारे आभार प्रकट करते हैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति, और उनके यहाँ से प्रस्थान का समय हो चुका है, तो इन्हीं तालियों के गूंज के साथ उन्हें आज इस मंच से हम विदा देते हैं। सभी मान्यवर अतिथिगणों का भी बहुत आभार। आज के इस समारोह को और इमारत के निर्माण को यशदायी बनाने में जितने भी हाथ जुड़े हैं उन सब के प्रति हम यहाँ पर आभार प्रकट करते हैं। आप सभी आज के इस ऐतिहासिक समारोह को